Good morning, students. In advanced Java programming, unit number 3, which is Servlet API and overview. In a previous session, we have discussed about the basic introduction of a servlet. What is servlet? What is a servlet API? Okay, and what is the difference between the servlet and a CGI common gateway interface, which is a first server-side scripting language. Okay, so in the previous session we have discussed these of the things. Now, in this session, we will see a servlet life cycle, and this is a very important point regarding to understand the whole process of a servlet, how the servlet can initialize, how the serverless can work, right? And also it is very important from the GTU side, also for the GTU example examination. It is a very useful or very important question ki what is a servlet life cycle, right? So let's see the servlet life cycle. So the servlet life cycle can contain different three phases. The first phase is a init phase. It means the initialization phase. After the initialization phase, the servlet which is in a service can call the service method, which is a third phase of a servlet life cycle. And the last phase of a servlet life cycle is a destroy phase. So basically, the servlet life cycle can contain a three phases: init, service, and a destroy phase. At the init phase, the servlet class is loaded. After that, the instance of a servlet is created, and finally the init method is invoked. It means the whatever the initialization process is required at the starting point of the servlet, it will be done at the init phase, and this whole life cycle is stored at a servlet container where the various servlet files are stored. So the basically servlet life cycle can contain three phases: init phase, service phase, and a destroy phase. Okay, let's see these three phases little bit in more detail. So the first phase is a servlet life cycle is a init phase. It means the initialization, which will do the three tasks. The first task is to load the servlet class. So the class loader is a responsible to load the servlet class, and the servlet class is loaded when the first request for the servlet is received by the web container. It means whenever you make a first request to the particular web page, or a what we say for the dynamic web page, at that time the servlet class can be loaded by the web container, where the web container is a web application which runs within a web container. So whatever the web applications which will deployed on a server is run at a web, in a web container of a web server. वेब सर्वर के पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेब कंटेनर्स होते हैं, जिस वेब कंटेनर्स के अंदर ये जो सारे क्लासेस रहते हैं सर्वलेट के, और जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो हमने प्रीवियस सेशन में देखी थी, उसके अकॉर्डिंगली उसके जो कंटेनर्स रहते हैं उसमें उसके जो क्लासेस है, जो फाइल्स हैं वो स्टोर्ड रहती है. तो जब भी हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो वेब कंटेनर की जो सर्वर साइड पे है उसके वेब कंटेनर में जाती है, और वेब कंटेनर का काम है कि जिस फाइल को हमने कॉल किया है या तो जिस फाइल के लिए हमने रिक्वेस्ट की है उस फाइल का जो क्लास है, राइट, उस क्लास को सबसे पहले लोड करें, राइट. सो द वेब एप्लीकेशन which runs within a web container of a web server, and the web container can provide the runtime environment. Now the second task which is done by the
init method is a instance creation. It means कि the web container create the instance of a servlet. It means कि जब सबसे पहले उसने क्लास को लोड किया तो सर्वलेट क्लास लोड हो गया कि जिस क्लास के लिए हमने उसको कॉल किया है। उसके बाद उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा, इंस्टेंस इन द सेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो डन हो सके। एज वी नो द जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कि विदाउट मेकिंग और विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम जावा के अंदर कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कुछ भी डेटा को फेच नहीं कर सकते, डेटा रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, कोई वैल्यू पास नहीं कर सकते हैं, किसी मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम कर सकते हैं। सो आफ्टर द क्लास लोडिंग सबसे पहला उसके बाद का नेक्स्ट टास्क है टू क्रिएट द इंस्टेंस कि जिस इंस्टेंस के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कैरी की जाएगी, राइट। सो द वेब कंटेनर क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ सर्वलेट एंड आफ्टर लोडिंग द सर्वर class. So the servlet instance is created only once in the servlet life cycle. It means कि particular servlet class के लिए जो instance है वो एक ही बार create किया जाएगा at the initialization phase and during the life cycle जब जितनी भी time जो life cycle है वो चलती रहेगी वो अपने running mode में होगी। at that time वही single instance के साथ हम सारे के सारे task perform कर सकते हैं, right? And the last one is to invoke the init method. So the web container call the init method only once after creating the server instance and the init method is used to initialize the servlet. It means कि जिस servlet के लिए हमने कॉल किया है और जो भी डायनेमिक वेब पेज हमें चाहिए उसके रिगार्डिंग जो भी वेरिएबल्स हैं, जो मेथड्स हैं, जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, जिसको इनिशियलाइज करना पड़ता है सबसे पहले कि उसको उसकी मेमोरी लोकेशन अलॉट करना, उस वेरिएबल को उसकी वैल्यू प्रोवाइड करना, जितने भी इनिशियलाइजेशन एट द इनिट मेथड में जो भी इनिशियलाइजेशन फेज में जो भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो सब एक ही बार होंगे कि जब हमने सबसे पहले रिक्वेस्ट की एट दैट टाइम। तो एक ही बार इनिट मेथड कॉल होगी, उसके रिगार्डिंग जितने भी टास्क हैं वो सारे परफॉर्म होंगे और उसके बाद जाके फाइनल जो नेक्स्ट फेज है सर्विस फेज वो कॉल होगा। तो बेसिकली इनिट मेथड जो है सर्वलेट लाइफ साइकिल का जो फर्स्ट फेज है इनिट, इसका मेन 3 काम है कि क्लास को लोड करना, उसका इंस्टेंस क्रिएट करना और फाइनली जाके उसकी इनिट मेथड को कॉल करना ताकि जो भी इनिशियलाइजेशन है सर्वलेट के रिगार्डिंग वो सारे टास्क हो सके। सो दिस इज द सेंटेक्स फॉर द इनिट मेथड कि जब हम सर्वलेट के प्रोग्रामिंग्स करेंगे एट दैट टाइम जो भी 3 फेजेस हैं वो 3 फेजेस को हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे और उसके तो उसके लिए जो उसकी सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि पब्लिक वॉइड इनिट मेथड in bracket it will accept one object as an argument which is a servlet config object. It means the servlet config it's a class of a servlet, right? और उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका काम है फॉर द कॉन्फ़िगरेशन कि सर्वलेट की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको इनिशियलाइज्ड करना। सो द सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या है? तो अ सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट used by the servlet container to pass the information to a servlet during the initialization process. तो जब initialization process carry की जाएगी तो जो कंटेनर है, राइट, उसको जो इंफॉर्मेशन है वो पास करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट यूज होता है। इट मींस कि जो सर्वलेट को हमने कॉल किया है कि जिस पर्टिकुलर वेब पेज के लिए हमने वो रिक्वेस्ट की है उस वेब पेज का नाम क्या है, वो कहाँ पे स्टोर्ड है, उसका पाथ क्या है, राइट, और बेसिक उसके रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट, इट मींस द सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू सर्वलेट कंटेनर को पास की जाएगी और सर्वलेट कंटेनर क्या करेगा, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वो उस पर्टिकुलर सर्वलेट क्लास को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। और इन ब्रैकेट में जितने भी इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है वो हम लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा इनिट फेज। उसके बाद आता है
सर्वलेट पैकेजेस की जो यूज होते हैं इन अ सर्वलेट लाइफ साइकिल। सो इन अ जावा जब हम सर्वलेट के प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके लिए जो पैकेज यूज होता है उसका नाम है जावा एक्स डॉट सर्वलेट। एक्स मीन्स एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अ जावा, राइट। सो जावा डॉट सर्वलेट जो पैकेज है उसके अंदर एक इंटरफेस है जिसका नाम है सर्वलेट, और वो सर्वलेट इंटरफेस इट इज implemented by the generic servlet class and generic servlet class extended by the http servlet class। एंड उस http servlet class से हम my servlet नाम का जो क्लास है उसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो बेसिकली सर्वलेट पैकेज के अंदर एक इंटरफेस और तीन तरीके के क्लास रहते हैं। सर्वलेट इंटरफेस है, जेनेरिक सर्वलेट उसका क्लास है, एचटीटीपी भी उसका क्लास है, एंड माय सर्वलेट नाम का भी एक क्लास है कि जो यूजर डिफाइन है। तो सबसे पहले जो सर्वलेट इंटरफेस है इट इज नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर क्रिएटिंग द एनी सर्वलेट। सबसे पहला जो इंटरफेस है सर्वलेट वो मेन सर्वलेट है कि जो तीन लाइफ साइकिल की जो तीन बेसिक मेथड है, इनिट मेथड, सर्विस मेथड एंड डिस्ट्रॉय मेथड, इन तीनों को इंप्लीमेंट करने के लिए सर्वलेट इंटरफेस का यूज होता है। उसके बाद आता है जेनेरिक सर्वलेट कि जो इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है फॉर दैट पर्टिकुलर थ्री जो मेथड्स है, और जो सर्वलेट इंटरफेस है उसकी जो मेथड्स है उसका इंप्लीमेंटेशन जेनेरिक सर्वलेट में होता है। और उसके बाद उससे एक्सटेंड किया एचटीटीपी सर्वलेट कि जिसका काम है इट विल कंटेन द इंटरफेसेस एंड abstract class for the servlet that understand the http protocol। बेसिकली जब भी हम कोई भी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, http प्रोटोकॉल के थ्रू मिलता है। तो जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे वेब सर्वलेट सर्वलेट के लिए तो वो हमारी रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ http जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग जो भी इंप्लीमेंटेशन है, उसके रिगार्डिंग जो भी इंटरफेस है वो सारे हमें कहां से मिलेंगे, http सर्वलेट से मिलेंगे। और http सर्वलेट को यूज करने के लिए जो पैकेज यूज होता है उसका नाम है javax.servlet.htp। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा यूजर डिफाइंड सर्वलेट क्लास की जो हमने डिफाइन किया है टू जनरेट अ डायनेमिक वेब पेज। सो अगर हमें कोई भी सर्वलेट क्लास डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे क्लास को एक्सटेंड करवाएंगे http सर्वलेट से जो एक्सटेंड होगा जेनेरिक सर्वलेट से, और वो जेनेरिक सर्वलेट इंप्लीमेंट होगा बाय सर्वलेट इंटरफेस। तो ये पूरी एक प्रोसेस है सर्वलेट पैकेज की, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है सर्विस मेथड ऑफ अ सर्वलेट लाइफ साइकिल जो सेकंड फेज है। सो ये जो है सर्वलेट का हार्ट है, उसका दिल है कि जिसके थ्रू सारे के सारे जो भी एक्चुअल टास्क है रिगार्डिंग द बिजनेस लॉजिक कि डेटा को मैनिपुलेट करना और नया वेब पेज क्रिएट करना, डायनेमिक वेब पेज डिजाइन करके यूजर को रिक्वेस्ट एज अ रिस्पॉन्स देना, ये सारे जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को जो हैंडल करती है वो कौन है, सर्विस मेथड। इसीलिए सर्विस मेथड जो है वो हार्ट है और मेन मेथड है ऑफ अ सर्वलेट लाइफ साइकिल की जो एक्चुअल टास्क परफॉर्म करते हैं, राइट। सो द सर्वलेट कंटेनर इट मींस कि जो वेब सर्वर है it will call the service method to handle the request coming from the client, it means कि web browser, and to write the response back to the client। सर्विस मेथड का क्या काम है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है फ्रॉम द क्लाइंट फॉर अ डायनेमिक वेब पेज उसको हैंडल करना, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट उसका रिस्पॉन्स जनरेट करके वो रिस्पॉन्स जो है वो किसको वापस भेजना, क्लाइंट को भेजना। इसीलिए सर्विस मेथड जो है वो लाइफ साइकिल का, सर्वलेट लाइफ साइकिल का हार्ट है, उसकी मेन मेथड है। So each and time the server can receive a request for a servlet, the server spawns a new thread and call the service method। It means कि as we know कि servlet जो है वो एक प्रोसेस अलाउ नहीं करता है, वो क्या करता है कि पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट लिए वो थ्रेड्स जनरेट करते आगे बढ़ता है। सो जब भी कोई ईच एंड एवरी टाइम जब भी कोई नई नई रिक्वेस्ट आई तो उस रिक्वेस्ट के लिए
सर्वलेट क्या करेगा कि एक नया थ्रेड उसको जनरेट करके दे देगा और फाइनली उस पर्टिकुलर थ्रेड के लिए वो सर्विस मेथड को कॉल करेगा। और सर्विस मेथड क्या करेगी, जो रिक्वेस्ट आई राइट, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वेस्ट उसका जो डायनेमिक रिस्पॉन्स है, वो डायनेमिक रिस्पॉन्स इन द सेंस की डायनेमिक वेब पेज जनरेट किया और उसको वापस से उस क्लाइंट को एज अ रिस्पॉन्स भेज दिया राइट। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ अ सर्विस मेथड की पब्लिक वॉइड सर्विस एंड सर्विस मेथड जो है वो दो ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करती है। द फर्स्ट वन इज अ सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट वन इज अ सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, कि जिसका काम है रिक्वेस्ट को हैंडल करना और रिस्पॉन्स को राइट करके बैक टू दी क्लाइंट उसको भेजना। इसीलिए सर्विस मेथड जो है वो दो ऑब्जेक्ट एज एन इनपुट एक्सेप्ट करती है, सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। और अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हम बाय थ्रोइंग द सर्वलेट एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन एंड एक्सेट्रा जिस भी टाइप के एक्सेप्शन जनरेट होंगे वो, और करली ब्रेसेस के अंदर हम हमारा जो मेन लॉजिक है कि जो रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा राइट, उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें जो भी डायनेमिकली चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करेगा वेब पेज में, और जो डायनेमिक वेब पेज है वो बैक टू दिस क्लाइंट सेंड करेगा। तो वो सारे जो लॉजिक्स है वो हम करली ब्रेसेस में पुट करेंगे राइट। ओके, जस्ट होल्ड अ मिनट। ओके, सो बाय यूजिंग और बाय कॉलिंग द सर्विस मेथड हम जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको हैंडल करके उसका रिस्पॉन्स जनरेट करके उसको रिस्पॉन्स देंगे। उसके बाद जो सर्विस मेथड है इट विल चेक फॉर द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जो किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइक गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, पुट मेथड है, डिलीट मेथड है एक्सेट्रा। बहुत सारे टाइप्स की रिक्वेस्ट रहती है। तो जिस भी टाइप का यूजर कॉल करेगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कॉल, वो उस मेथड को क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट मेथड को कॉल करवाएगा कि जो सर्विस मेथड में रहेगी। जो सर्विस मेथड है ओके, सो जो सर्विस मेथड है वो रिप्लेस हो सकती है बाय एप्रोप्रिएट मेथड, कि जैसे कि डू गेट मेथड है, डू पोस्ट मेथड है, डू पुट मेथड है, डू डिलीट मेथड है। जैसे भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट वो मेथड रिप्लेस, सर्विस मेथड जो है वो एप्रोप्रिएट मेथड से रिप्लेस हो जाएगी राइट। सो डू गेट एंड डू पोस्ट आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड है, कि जो हम नेक्स्ट हमारे आगे जाएंगे तब हम उसको विथ इन डिटेल हम उसको स्टडी करेंगे राइट। और लास्ट में आएगी थर्ड फेज विच इज अ डिस्ट्रॉय फेज और डिस्ट्रॉय मेथड, कि जो एक ही बार कॉल होती है कि जब जो लाइफ साइकिल है वो अपना प्रोसेस फाइनली एंड कर रही हो एट दैट टाइम। इट मींस कि जो रिक्वेस्ट आई यूजर की उस रिक्वेस्ट को इनिशियलाइज्ड करके सर्विस मेथड को कॉल करके जो रिस्पॉन्स है वो यूजर को भेज दिया, उसके बाद जाके जब यूजर को उसका फाइनल रिस्पॉन्स मिल गया उसके बाद क्या होगा कि डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगी, ताकि जो रिसोर्सेस जो ऑक्यूपाई किए हैं राइट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर लाइफ साइकिल, जितने भी रिसोर्सेस यूज हुए उस सारे रिसोर्सेस को फ्री हो, वो रिसोर्सेस फ्री हो जाए और उसका हम फर्दर यूज नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कर सके। जो भी थ्रेड्स क्रिएट हुआ था प्रोसेस में तो वो सारे जो है वो बाय कॉलिंग द डिस्ट्रॉय मेथड हम फाइनली जो रिसोर्स फ्री अप कर सकते हैं राइट। सो जिसके जैसे कि डेटाबेस के साथ कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था तो हम उसको क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हम होल्ड द बैकग्राउंड थ्रेड, की जो थ्रेड रन हो रहा था उसको हम होल्ड पे रख सकते हैं ताकि हम उसका नेक्स्ट यूज कर सके। कुकीज, राइट द कुकी लिस्ट और हिट द काउंट टू डिस्क, की ताकि जो भी रिक्वेस्ट आई उसकी हम कुकी जनरेट कर सके ताकि वो फर्दर नेक्स्ट टाइम जब भी रिक्वेस्ट करे तो वही जो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बार बार हमें लेनी ना पड़े, वो डायरेक्टली कुकी से एक्सेस की जा सके। एंड जैसे कि अदर क्लीन अप एक्टिविटीज है, जो भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं, मेथड्स यूज हुए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स यूज हुए हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सके ताकि उसका हम कहीं पे भी नेक्स्ट यूज
कर सके। तो ये सारे टास्क हैं कि जो हम डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करके कर सकते हैं। जो डिस्ट्रॉय मेथड कॉल कर सकते हैं तो जो गार्बेज कलेक्शन का जो टास्क है वो भी फाइनली हो सकता है। और डिस्ट्रॉय मेथड की जो सिंटैक्स है वो है पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका फाइनलाइजेशन कोड जो भी आपको परफॉर्म करना है, लाइक कि मैसेज देना है कि यस हियर एंडिंग योर रिक्वेस्ट और द वेब पेज इज क्लोजिंग और एक्सेट्रा, जो भी आपको फाइनलाइज कोड पेस्ट करना है वो आप डिस्ट्रॉय मेथड में पेस्ट कर सकते हो एट द एंड। तो ये 3 मेन फेज थे सर्वलेट लाइफ साइकिल के, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। ओके, सो कुछ इस तरह से जावा वर्चुअल मशीन है वो हैंडल करती है कि जहां पे सर्वलेट कंटेनर के अंदर क्या रहते हैं, सर्वलेट जो भी है, राइट, वो सारे सर्वलेट वेब सर्वर्स के अंदर, वेब सर्वर के अंदर जो वेब पेजेस है वो स्टोर रहते हैं, और जो सर्वलेट क्लास है उस क्लास की जो फाइल्स है वो सारी सर्वलेट कंटेनर में रहती है। जब भी यूजर्स कोई रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर को तो वो वेब सर्वर क्या करेगा, सर्वलेट कंटेनर को वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि इस पर्टिकुलर नाम की यूजर ने फाइल या तो सर्वलेट फाइल का रिक्वेस्ट की है। तो कंटेनर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो थ्रेड बना के जो सर्वलेट का जो लाइफ साइकिल है उसको कॉल करेगा। अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट इनिट मेथड कॉल होगी, फिर सर्विस मेथड कॉल होगी, एंड फाइनली जब सर्विस मेथड की टास्क पूरा हो जाए और लास्ट में क्या होगा, डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा, राइट। और इस तरह से का प्रोसेस होगा कि रिक्वेस्ट आई तो इनिट मेथड कॉल हुई, सर्विस जो मेथड है वो आइदर डू गेट, डू पोस्ट, डू हेड, डू ऑप्शन, डू ट्रेस, डू पुट और डू डिलीट, जिस भी टाइप की रिक्वेस्ट आए उसके अप्रोप्रिएट मेथड से वो रिप्लेस हो जाएगी, और फाइनली जो रिस्पॉन्स है वो क्लाइंट को भेजा जाएगा, और उसके बाद जाके डिस्ट्रॉय, इट मींस द डिस्ट्रक्शन जो टास्क है वो कैरी किया जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट हो देन जस्ट लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।